Hello, Assalamu alaikum. Good afternoon and welcome back. Um, अब जो हमारा session है, this one is going to be very useful and very interesting because this is the first session in which we will be delving into the details of the GRE, GMAT, NTS CAT math portion. So the quantitative portion जिसकी हमने सुबह बात की थी, उसके अंदर जो structure होता है, जो types of questions आते हैं, we'll slowly and gradually start covering a couple of topics. ऑब्वियसली हमारे पास सिर्फ 3 दिन है तो शायद सारे टॉपिक्स ए टू जी ना हो सकें, बट आई हैव शॉर्टलिस्टेड द वंस which are most frequently tested on these standardized testing exams. And the first topic that we will be discussing today is mixture problems. Mixture problems is also known as mixture frames. GRE GMAT के अंदर it's a very common type of question, and I specifically chose to start off the session with these types of questions just because I think this is one area जो कि हम लोगों ने अपनी conventional studies में सबसे कम explore किया होता है. So mixture frame क्या होता है, अगर एक solution को दूसरे solution में mix कर दें, these are the kind of problems जो especially the ones who are not coming from a math background हम लोगों ने बहुत seldom देखे होते हैं, ज़्यादातर नहीं देखे होते हैं. So I wanted to start with this topic. Agenda for the session is कि we'll cover what mixture problems are. उसको solve करने के लिए एक mixture frame होता है. How do we make that mixture frame? When is it useful? How is it useful? इसके अंदर shortcut क्या हो सकता है? So पहले ये सारी बात करेंगे. Then another very frequently tested topic, perhaps an easy one, but still a lot of us struggle with it. Percentages, discounts, selling price, cost price, ये वाली जो सारी terminology हम probably भूल चुके होंगे. So we'll have a quick refresher of these terminologies और कुछ percentages के सवाल करेंगे. So we have a board here in front of us. We will be jumping from slides to the board as well because I wanted to solve those questions with you all in real time as well. So सबसे पहले बात करते हैं mixture problems की. Let's go on to our first slide. Okay. So what we'll do is our flow of preparation would be such कि हम हर topic को different types of questions में break कर देंगे. ठीक है. So for example mixture problems के अंदर there are two types of questions which are very frequently tested. So type 1 हम cover करेंगे, उसकी एक example करेंगे, फिर type 2 and उसकी एक example. So type 1 वो होती है जिसके अंदर you are given a situation in which you are adding a pure substance to a mixture और उसकी प्योरिटी को चेंज कर रहे हैं. सो आपके पास एक इनिशियल मिक्सचर है जो कि हाफ प्योर है. अभी मैं समझाता हूँ प्योरिटी का क्या मतलब है. उसके अंदर यू ऐड सम सोल्यूशन, ऐड अ प्योर सोल्यूशन टू इट, और आप उसी मिक्सचर को इंक्रीज करके एक नया मिक्सचर बना लेते हैं. ठीक है. सो दिस इज नॉट एडिशन ऑफ two mixtures. This is one mixture and the pure substance is being added to that mixture. So ये हमारी type 1 है. इसके अंदर होता क्या है? What you see here on the slide is, अगर हम स्लाइड पे एक मिनट के लिए फोकस करें, आपके पास एक मिक्सचर है which I am calling M. ठीक है. This mixture is made up of let's say for the purpose of GRE GMAT two components A and B. ठीक है. So let's say A is salt and B is water. So mixture M is a saline mixture जिसके अंदर A amount of salt है and B amount of water है. अब हमने इसकी प्योरिटी चेंज करनी है, हमने इसके अंदर ज्यादा नमक डालना है. ठीक है. सो वी विल गो फ्रॉम द इनिशियल मिक्सचर टू अ फाइनल मिक्सचर व्हिच आई एम कॉलिंग M डैश. एंड इसके अंदर हमें पता था, मैंने रेफर किया A इज सॉल्ट, और हम सॉल्ट ही और ऐड कर रहे हैं, तो द न्यू क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट विल बी A प्लस X, where X is the additional amount of salt that we are adding, and B the amount of water remains the same. So ये हमारे पास एक नया मिक्सचर आ गया. So I think this visual representation for a mixture frame is very useful because at times what we tend to do in standardized testing is कि हम algebra, equations, इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा we get involved a lot in algebra, और हम थोड़ा सारा miss out कर देते हैं जो actual problem पूछी जा रही होती है. So अगर आपके सामने एक visual representation हो, आप लोग अगर पहली बार देख रहे हैं तो इट्स अ गुड आइडिया टू ड्रॉ द मिक्सचर फ्रेम, नोट इट डाउन समवेयर, एंड जब आप क्वेश्चंस कर करके यूज्ड टू हो जाएंगे, देन एट टाइम्स यू जस्ट ड्रॉ दिस मिक्सचर फ्रेम इन योर हेड एंड जस्ट राइट द इक्वेशन. इक्वेशन क्या है आपको बताया गया है, द रिक्वायर्ड परसेंटेज. अभी ऑल दिस विल बी क्लैरिफाइड थ्रू एन एग्जांपल. द रिक्वायर्ड परसेंटेज, उसका आपको फॉर्मूला मैंने दे दिया है, दैट यू कैन आल्सो सी ऑन द बोर्ड.
इस रिक्वायर्ड परसेंटेज कैसे निकलती है? द न्यू अमाउंट ऑफ सॉल्ट और द न्यू अमाउंट ऑफ द प्योर सब्सटेंस विच इज ए प्लस एक्स, ए इनिशियल थी, एक्स हमने ऐड कर दी थी, डिवाइडेड बाय द न्यू अमाउंट ऑफ टोटल मिक्सचर। सही है, सो वो एम डैश है। इसको एग्जांपल से देखते हैं। चलो लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल। एन अल्कोहलिक मिक्सचर of 120 liters is only 40% pure. ठीक है, so let's stop here. We know that we have a mixture M जिसकी total amount है 120 and it is only 40% या 20%, अभी एग्जांपल दोबारा देख लेते हैं, प्योर। ठीक है, so जितनी प्योरिटी है उतना अल्कोहल है and the rest must be water। तो हम अपना मिक्सचर फ्रेम बना लेते हैं। वापस स्लाइड पे आते हैं। मीनवाइल मैं आपको, ये हमारे पास 120 टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर आ गया, जो कि हमारे उसमें एम था। अब दिस इज ओनली 40% प्योर। दिस इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, एक अल्कोहल है और एक वाटर है। ठीक है, अब 40% प्योर है तो आई कैन फाइंड 40% ऑफ 120। सो वो कैसे निकलता है? 40 over 100 into 120। आई जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर एज वेल। 40 over 100 into 120। I cancel the zeros। ठीक है, और मुझे पता चल गया the amount of alcohol here is 48। अब टोटल 120 था, इसमें से 48 इधर आ गया, तो पीछे वाटर कितना रह गया? 120 माइनस 48। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 72। ये इनिशियल सिचुएशन है। ठीक है, सो पहली ही स्टेटमेंट से मैंने अपनी एक इनिशियल सिचुएशन बना ली। नाउ लेट्स लुक एट द फाइनल सिचुएशन। अब ये नया मिक्सचर बन रहा है। ठीक है, नए मिक्सचर की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज हमने करना क्या है? हमने प्योरिटी बढ़ानी है। सो प्योरिटी अगर किसी चीज की बढ़ानी है तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो प्योर सब्सटेंस है वो ऐड कर देंगे, राइट? सो अल्कोहल अगर अभी 48 है तो वी कैन से वी ऐड x अमाउंट ऑफ अल्कोहल टू इट। सो ये हो गया 48 प्लस x। वाटर एज इट इज रहेगा 72। अब अगर पहले टोटल क्वांटिटी 120 थी, नाउ द न्यू क्वांटिटी वुड बी 120 प्लस x, बिकॉज हमने x अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नया डाल दिया। सो दिस इज आवर न्यू अमाउंट। अब आपको स्लाइड के ऊपर एक फॉर्मूला दिया हुआ था, अगर हम स्लाइड पे आके देखें, रिक्वायर्ड परसेंटेज वाज इक्वल टू द परसेंटेज वाज इक्वल टू a plus x, which is in our case 48 plus x, divided by the new amount m dash। m dash हमारे पास यहाँ पे क्या है? 120 plus x। so new amount हमारे पास आ गई 120 plus x is equal to required percentage। so अब अगर हम स्लाइड पे देखें, required percentage उसने हमसे कितनी पूछी हुई है? required purity हमने करनी है 60%। so can I write 60% as 0.6? yes I can even write it as a fraction। so depends whether it's coming in the GRE or GMAT। अगर GRE के अंदर आ रहा है तो कैलकुलेटर है, बेशक 0.6 लिख दें, मल्टीप्लाई कर लें, इजी हो जाएगा। GMAT के अंदर है तो working with fractions is easier because then you can cancel out a lot of things। so when you cross multiply these numbers, so 48 plus x को इधर या चलें इसको कैंसिल कर दें, 6/10 बन जाएगा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये बन गया 480 प्लस 10x इज इक्वल टू, अब 6 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 प्लस x है, तो दिस विल बिकम 720 प्लस 6x। सो व्हेन यू सॉल्व इट you get to the answer which is 60, I believe। चेक कर लें इसको बेशक। so again it's important to understand the idea behind it। idea क्या था? we had a solution, we wanted to make it more pure, so we said we will add x amount to it। वहां से हमारे पास पहला सोल्यूशन था 48, so हमने कहा 48 के अंदर हम x और ऐड करें तो the new one becomes 48 plus x, right? 48 plus x हमारे पास नया अमाउंट ऑफ अल्कोहल आ गया, divided by the new amount of total mixture, which in our case was 120 plus x, because 120 था और हमने x ऐड किया, it became 120 plus x। so simply हमने उसको divide किया and we wanted it to be equal to 60% purity, तो हमने उसको 60 over 100 के equal रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर आप जो भी वैल्यू निकलती है वो तो एक सिंपल सा लास्ट स्टेप ही है। but I think this part over here
and making this equation is important. I'm sure एक cross multiplication वाली equation तो solve हो ही जाएगी, but getting to this equation is what is challenging for most people. ठीक है, so अभी हमने सिर्फ पहली type of mixture problem cover किया. Let's have a look at the other type. ठीक है, type 2. Type 2 की अगर मैं बात करूं, this is not about adding something to an existing mixture. This is about mixing two solutions altogether. ठीक है, एक solution A है जिसकी अपनी composition है, उसके अंदर A की कोई quantity है, B की quantity है, right? फिर आपके पास एक और solution है, let's call it M2, उसकी अपनी composition है, और फिर आपने M1 और M2 दोनों solutions को mix कर दिया, और फिर आपने देखना है कि जो नया mixture बना है after mixing these two solutions, उसकी क्या composition है. So something around these lines. अगर आप स्लाइड पे देखें, यहां पे लिखा हुआ है M1 is made up of A and B and M2 is let's say also made up of A and B. अब required composition of the new mixture would be, if I have a look at my slide, it would be M1 के अंदर जो percentage है plus M2 के अंदर जो percentage है divided by M1 plus M2. ठीक हो गया. चले, इसको भी आई नो अभी काफी कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये किस तरह से यूज होगा, कैसे करेंगे, लेकिन एग्जांपल के थ्रू होपफुली ये काफी ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा. बट आई रिक्वेस्ट कि आप स्लाइड पे आके अगर 1 मिनट के लिए पॉज कर दे, बिकॉज आई वांट एवरीबॉडी टू नोट डाउन दिस फार्मूला. दिस फार्मूला विल बी वेरी वेरी यूजफुल एंड यू विल रियलाइज व्हाइल वी अटेम्प्ट द एग्जांपल. सो रिक्वायर्ड परसेंटेज जो नए सोल्यूशन की होती है, दैट इज परसेंटेज ऑफ द सब्सटेंस जिससे वी आर कंसर्न्ड इनटू M1 plus percentage of the substance जिससे we are concerned into M2 divided by M1 plus M2, where M1 and M2 represent the two mixtures respectively. ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं. Take a minute, read the question first yourself and then I'll start speaking. ठीक है, so पहले absorb कर लें इसको एक दफा. चले देखते हैं सवाल क्या कह रहा है. सवाल ये कह रहा है mixture A is 180 liters of salt water solution that has 20% salt. So मुझे अपने mixture की composition मिल गई, mixture A की. So अब बोर्ड पे आते हैं. mixture 1 की मैं पहले बात कर लेता हूँ. ठीक है, so mixture 1 के अंदर 180 लीटर्स टोटल है और इसमें से salt कितना है, 20% है. So I can simply find 20% of 180 और वो मेरा amount of salt होगा. So 20% of 180 कैसे निकल आएगा, 20 divided by 100 into 180. ठीक है, again let's cancel out the zeros. 36 मेरे पास आ गया amount of salt. बाकी जो रह गया है वो water है. मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं है. I don't need to subtract it. Let's save time because I'm only concerned with salt. अच्छा, अब मिक्सचर 2 को देखते हैं. अगर हम वापस स्लाइड पे आए एंड लेट्स सी इफ दिस मार्कर इज विजिबल. ओके, आई हैव बीन टोल्ड दैट द मार्कर इज नॉट विजिबल बट it should probably be working now. I hope it's working now. जी, okay, sorry for the interruption. Coming back, where was I? मैं आपको बता रहा था मिक्सचर 1 के अंदर हमारे पास टोटल 180 लीटर्स था. मैंने इसको टिक कर दिया. मिक्सचर 1 के अंदर मेरे पास 20% सॉल्ट था. सो मैंने 20% ऑफ 180 निकाला. दैट अमाउंटेड टू 36 एंड 36 वाज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन मिक्सचर 1. वाटर ऑब्वियसली 130 में से 36 माइनस करूंगा तो आ जाएगा, बट आई एम नॉट कंसर्न्ड विद इट, सो आई एम नॉट फाइंडिंग इट. ठीक है, व्हाई spend extra energy on calculating something which at this point at least मुझे लग रहा है won't be required. So मैं सॉल्ट पे रुक गया. अब M2 है. M2 की क्या हमें ट्रेट गिवन है या क्या बताया हुआ है? लेट्स गो बैक टू द स्लाइड्स एंड सी कि M2 के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है. स्लाइड क्या कह रही है M2 के बारे में? मिक्सचर B, चले M2 नहीं तो मिक्सचर B is also a salt water solution but with 60% purity. अभी स्लाइड को ही देखते हैं. How much of mixture B should be added to mixture A in order to make a solution that is 30% pure?
ओके, सो पहले सवाल को समझते हैं। स्लाइड पे ही आप बेशक पढ़ते रहें साथ-साथ स्टेटमेंट। हमारे पास एक मिक्सचर था जिसके अंदर सॉल्ट का रेशियो था 20%, ठीक है? सॉल्ट की परसेंटेज प्योरिटी थी 20%। एक और मिक्सचर है जिसके अंदर सॉल्ट की प्योरिटी है 60%। तो जिसके अंदर सॉल्ट की प्योरिटी ज़्यादा है, अगर मैं उस मिक्सचर को उठा के अपने पहले मिक्सचर में डाल दूँगा, तो नेट रिज़ल्ट जो आएगा, वो पहले मिक्सचर की जो प्योरिटी थी, उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, राइट? सो अगर पहले मिक्सचर के अंदर सिर्फ 20% था एंड इफ आई ऐड मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू इट, तो वो 20% से बढ़ जाएगा। अब एग्जामिनर ने हमसे ये पूछा है कि हाउ मच ऑफ M2 शुड वी ऐड टू M1 ताकि नेट रिजल्ट हमारी 30% प्योरिटी आ जाए। अब लेट्स से कि हमने x क्वांटिटी ऐड करनी है M2 की, ठीक है? सो अब अगर हम बोर्ड पे आके देखें, M2 की हमें टोटल क्वांटिटी नहीं गिवन मिक्सचर बी की, लेकिन हमें ये पता है 60% प्योर है। सो अगर टोटल हम x ऐड कर रहे हैं, तो सॉल्ट उसमें से कितना ऐड हो रहा है? 60%, और आई कैन इवन कॉल इट 0.6x, ठीक है? बाकी वाटर होगा। नाउ अब रिजल्टिंग हमारे पास क्या सिचुएशन आ रही है? दो मिक्सचर्स मिक्स हो गए हैं। पहले मिक्सचर का सॉल्ट कितना था? 36, ठीक है? ये मैं वही इक्वेशन यूज कर रहा हूं जो मैंने आपको स्लाइड दी थी। परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इनटू M1 और मिक्सचर ए विच वाज 20 over 100 into 180, एक्चुअल क्वांटिटी आ गई 36, and adding to it the amount of salt that we are adding from mixture B. So mixture B हम एक्सपोर कर रहे हैं, लेकिन उसमें से salt कितना आ रहा है? 60%. So 0.6x हमारे पास salt आ गया, divided by M1 plus M2. So M1 हमारे पास पता था 180 है, प्लस M2 हमने कितना ऐड किया है? मिक्सचर B कितना ऐड किया है? X अमाउंट ऐड किया, so 180 plus X. And we wanted a purity of how much percent? We wanted a purity of 30%, ठीक हो गया? सो ये हमने इक्वेशन सेटअप कर लिया है। एक्सप्लेन अगेन कि ये इक्वेशन किस तरह से सेटअप हुई है। सो हमारे पास फॉर्मूला गिवन था परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इनटू M1, ठीक है? और उसकी एक्चुअल निकाल रहे थे हम। सो परसेंटेज थी 20 over 100 into 180 टोटल था, वहां से मेरे पास 36 आ गया द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन मिक्सचर ए। अब मैं इसके अंदर मिक्सचर बी ऐड कर रहा हूं, जिसकी we're assuming that what we're adding is x, so the amount of salt that we're adding is 0.6x, because उन्होंने कहा हुआ है सवाल में it's 60%, so ये मैंने 0.6x इसमें ऐड कर दिया। Now this in the numerator what I have is the total amount of salt in the new mixture, the total amount of salt in the situation when two mixtures are mixed together, let's say। डिवाइड कर रहे हैं हम उसको by the total quantity। टोटल क्वांटिटी क्या बन चुकी है? M1 की 180 थी, राइट? और M2 को हमने X एज्यूम करके ऐड किया था। सो ये हमारे पास M1 प्लस M2 या मिक्सचर A प्लस मिक्सचर B आ गया, एंड वी वांटेड अ प्योरिटी ऑफ 30%, सो उसको इक्वल टू सेट कर दिया 30 over 100 के। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास X आ जाएगा, एंड दैट इज व्हाट द क्वेश्चन आस्क्ड अस टू फाइंड। सो इसको अगर हम लेट्स से जीरोस को कैंसिल कर देते हैं, 36 into 10 360 प्लस 0.6x into 10, ये 6x बन जाएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करना है 180 से, दिस विल बी 540 प्लस 3x, और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे आई थिंक इन दिस केस आंसर इज आल्सो 60, ठीक है? सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आराम से सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये इक्वेशन बनाना इज द रियल डील, ठीक है? सो मिक्सचर के एक्चुअली मैं आपको बहुत ज्यादा सवाल नहीं सिखाना चाह रहा, बिकॉज इन्हीं दो सवालों के इर्द गिर्द ही ज्यादा सवाल टेस्ट किए जाते हैं। सो टाइप ए दैट वी कवर्ड वाज related to a single mixture in which we add a pure substance। उसके अंदर हमने एक mixture frame बनाया, that you've also seen on the slide and hopefully you've also drawn it by now। टाइप 2 के अंदर we mixed two solutions together, और उसकी प्योरिटी चेंज हो जाती है। ज्यादा प्योर वाले को कम प्योर वाले के साथ किसी जगह पे ऐड कर देंगे तो ओवरऑल प्योरिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है, फ्रॉम दी वन विच हैज लोअर प्योरिटी। उसकी हमने दोनों की एक एक एग्जांपल देख ली। What I would recommend is that there are a lot of practice questions on the GRE and GMAT related to mixture problems, and you can find such questions in books like Princeton, Manhattan, Barron's, काफी जगह पे।
So इस स्टेज पे जहां हमारी पहली क्लास हो रही है, वी लर्निंग द फर्स्ट टॉपिक, इट्स आल्सो गुड आइडिया टू मे बी गो बैक to your books after the day is over and find the topic of mixture problems, apply these two techniques and solve the questions that are in front of you. So they will either fit in category B or type 2 or category A, which I called type 1, and इसके लिहाज से उसको solve करने की कोशिश करें. ठीक है. So the purpose of starting with a topic which is rather unconventional was not to intimidate you of course, but to give you an idea कि अगर कोई चीज इस तरह की भी आ रही है टेस्ट में जो आपने शायद कभी पढ़ी भी नहीं है, इट इज स्टिल वेरी इजी टू क्रैक इट इफ यू नो द राइट मेथड्स टू इट, इफ यू नो द राइट फार्मूला. 2 फार्मूलाज ही अभी तक हमने देखे हैं एंड हमने पूरा मिक्सचर फ्रेम कवर कर लिया. नेक्स्ट अप व्हाट वी गोइंग टू स्टार्ट इज परसेंटेजेस. ठीक है. सो परसेंटेजेस की स्लाइड्स को देखना शुरू करते हैं. So how many of us are scared of percentages? Of course I can't see you right now, but अगर आप लोग मेरे सामने किसी क्लास में बैठे होते तो आधी क्लास का जरूर हाथ ऊपर होता. Why is it so? Percentages is something जो कि हम बहुत यूज करते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में भी. अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं तब भी यूज करते हैं. अगर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं जहां पे आपका 3% टैक्स कट जाता है, आप टैक्स फाइल करते हैं, मतलब इन एनी सिचुएशन दैट यू कैन इमेजिन परसेंटेज कहीं ना कहीं यूज हो रही होती है. एंड व्हाई इज इट दैट स्टिल अ लॉट ऑफ अस फील अनकंफर्टेबल विद इट? इट्स बिकॉज हमारी जब परसेंटेजेस व्हेन वी वर लर्निंग इट, हमारी बेसिक्स कुछ शायद उस टाइम पे सही डेवलप नहीं हुए, या वी डिडंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस कि कल को हमने इवन प्रोफेशनल लाइफ में आके भी ये चीज यूज करनी होगी. सो सिर्फ व्हाट आई इंटेंड टू डू फ्रॉम दिस सेशन इज टू हेल्प यू फिक्स द बेस ऑफ परसेंटेजेस. ऑफ कोर्स उसके साथ मैं आपको कुछ शॉर्टकट सिखा के आज a few examples करवाऊंगा. But if you're able to concentrate properly for the next 30 minutes, and if you're able to fix your basics for percentages, I think this will go a very long way beyond the scope of this session, beyond the scope of applying this for GRE, GMAT, or beyond the scope of getting into a university. This will be very, very useful. So let's spend a couple of minutes understanding the very basics. Now, this might sound too childish for some people, but आई नो हमारी ऑडियंस में जरूर कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको इतनी सिंपल सी बात भी बहुत हेल्प आउट करेगी. एंड व्हाट डू आई मीन बाय सिंपल सी बात? लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट स्लाइड. परसेंटेजेस में प्रॉब्लम कब आती है? परसेंटेजेस में प्रॉब्लम तब आती है व्हेन वी आर अनएबल टू ट्रांसलेट द इंग्लिश in a question or in a situation to its mathematical counterpart. ठीक है. So अगर हमें कोई परसेंटेज में कॉम्प्लेक्स सा बोल देता है ना कि फाइंड 30% of 20% of 19 and given that there is a further markup of 12%, what will be the new price? सही है. So हम उस इंग्लिश को अगर सही से ट्रांसलेट कर लें एक सिंपल सी मैथ इक्वेशन में, तो हमारी 70% प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है. So in order to fix those challenges, I populated a small list जो कि 3-4 ही परसेंटेजेस के अंदर टेस्ट किए जाते हैं या परसेंटेजेस की टर्मिनोलॉजी में आते हैं, एंड उनकी इक्विवेलेंट मैथमेटिकल ट्रांसलेशन क्या है. So for the purpose of the exercise that I'm going to do with you, I'd request you to follow this convention. जहां पे हम what पढ़ेंगे, ठीक है, we will replace it with an unknown variable, let's say x in this case. ठीक है. So जहां पे हम what पढ़ेंगे, we will replace it with an unknown variable, let's call it x. जहां पे हम is पढ़ेंगे, we will replace it with the equal to sign that we have in math. जहां पे हम percent पढ़ेंगे, we will replace it by divided by 100. सही है. एंड लास्टली जहां पे हम ऑफ पढ़ेंगे, वी विल रिप्लेस इट विथ मल्टीप्लिकेशन. हो सकता है आपने बिट्स एंड पीसेस में ये ट्रांसलेशंस आपको पता भी हों, लेकिन ऑल ऑफ देम कमिंग टुगेदर इन अ सिंगल स्टेटमेंट, लेट्स सी हाउ वी कैन use this knowledge to solve a particular real actually GRE question that I have in front of me right now. AB is 20% of C. In terms of B, what percent of A is C? ठीक है, इसको एक दफा फिर पढ़ते हैं. AB is 20% of C. In terms of B, what percent of A is C? ठीक है. So
आई नो पीपल जो इस तरह का सवाल देखते ही उसको छोड़ देते हैं कि ये तो पता नहीं कैसे होगा, ये बहुत ज्यादा अलजेब्रा और इस तरह की चीजों में चले जाते हैं, बट लेट्स अप्लाई द डेफिनेशन दैट वी लर्नड। ठीक है, सो अब अगर हम बोर्ड पे आए, हमने पढ़ा पहली लाइन थी ए बी इज 20% ऑफ सी। सो अब मैं इंग्लिश टू मैथ ट्रांसलेशन कर रहा हूं। ए बी इज इक्वल टू लगा दिया 20%, परसेंट का मैंने कहा था मतलब है डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का क्या मतलब था, मल्टीप्लाई ऑफ सी। ठीक है, सो ए बी इज 20% ऑफ सी। एक इक्वेशन तो मेरे पास आ गई। लेट्स कम बैक टू द स्लाइड एंड सी के उसने हमसे पूछा क्या हुआ। स्लाइड में अगर हम आए और हम देखें, उसने पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ ए इज सी। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं वापस, ये मेरे पास गिवन था। अब पूछा क्या हुआ है, व्हाट को हमने रिप्लेस कर देना है एक्स से। व्हाट परसेंट को किसे रिप्लेस करना है, उसी नंबर को डिवाइडेड बाय 100। व्हाट परसेंट ऑफ ए का मतलब मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू सी। ठीक है, सो मैंने ये x निकालना है, ये मेरे से क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है। लेट्स मेक x द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला। ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 100 इंटू सी ओवर ए। अब लेकिन क्वेश्चन में उसने मुझे कहा था कि गिव मी द आंसर इन टर्म्स ऑफ b, सो आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस c ओवर a here। c over a से I need to get rid of it because I want my answer in terms of b. अब let's come back to what I wrote over here, the given equation. यहां से किसी तरह मैं c over a निकाल सकता हूं। yes, मैं अगर इस a को यहां पे ले जाऊं तो राइट साइड पे आ गया c over a, और ये 100 इधर चला जाएगा, b से मल्टीप्लाई होगा 100b, एंड ये 20 भी इधर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 20। सो दिस बिकम्स c over a की वैल्यू बिकम्स 5b। Now all I have to do is simply plug in this value instead of c over a. So c over a की मैंने वैल्यू निकाल ली from the given equation, वो 5b है, and 100 के साथ c over a मल्टीप्लाई हो रहा था, so मैं c over a को रिप्लेस कर दूंगा with 5b. So x, which is what is required in the question, will become 100 into 5b, and your final answer would be 500b. ठीक है, so how difficult was it? Wasn't difficult, right? सिर्फ अगर हमें ये इंग्लिश टू मैथ ट्रांसलेशन आती हो एंड हम कॉन्फिडेंट हो कि रिगार्डलेस जितनी भी मुश्किल एंड चैलेंजिंग इक्वेशन एग्जामिनर बना ले, आई हैव टू स्टिक टू द बेसिक्स, और यही बेसिक्स है। अब ये एक जीआरई का एक्चुअल सवाल है, ठीक है, अक्सर लोग इसको लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 या सो मच हो 4 पे भी रेट करते हैं। 3 एंड 4 का मतलब है टोटल डिफिकल्टी अगर 5 है तो 3 बीइंग the level of difficulty from 5 and 4 being very close to the highest level of difficulty. So ये लोग अक्सर इसको उस पे रेट करते हैं। लेकिन अगर हमने पहली टाइप ही जो हमने पढ़ी है translations, if we are able to fix those, we can solve such questions. Let's have a look at the second type of percentage question that we can see. अच्छा, okay. Type B. परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज अगर निकालना हो, ठीक है, I'll actually come to the slide because I want to spend a couple of minutes here and I'll request my team to wipe up this board so that we can solve the questions later. अच्छा, so slides को देखते हुए टाइप 2 परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, हमारे पास इसके अंदर दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस वो हो सकता है जिसके अंदर हमें कहा जाए find the percentage increase in a particular situation, ठीक है, सो इसके न्यूमरस केसेस होते हैं। एक केस ये है कि इन्फ्लेशन की वजह से हर चीज की प्राइस 20% बढ़ गई, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपल चले और आसान टर्म्स में बात कर लेता हूँ कि इन द ईयर 2010 मैं एक डेस्क चेयर खरीद सकता था फॉर 5,000 रुपीज, एंड नाउ इन द ईयर 2021 वो मिलती है 25,000 की। सो कितने परसेंटेज इंक्रीज हो चुकी हैं प्राइसेस, ठीक है। इसी तरह परसेंटेज डिक्रीज के भी मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। एक केस सिंपली ये हो सकता है कि कोई एक दुकान है विच इज सेलिंग टिश्यू पेपर
at 50 rupees और ड्यूरिंग अ सेल उन्होंने 20%, उन्होंने 50 से उसको 30 रुपीज का कर दिया. सो व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन दैट केस? Type 2, be aware, you only have to use it when the final answer is required as a percentage. ठीक है. और इसके अंदर अब एक एक करके हम फॉर्मूला देखते हैं कि ये फॉर्मूला क्या क्या रहा है. सो इफ यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, आप सिंपली g माइनस एस ओवर एस इंटू 100 कर दें. सो g क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? g इज रिप्रेजेंटिंग द ग्रेटर वैल्यू ऑफ द टू वैल्यूज दैट विल बी गिवन, and s is representing the smaller value of the two values that will be given. So usually क्या होता है, we get lost into translations of words like selling price, cost price, new price, old price. ये तो फिर भी सिंपल है, लेकिन ग्रेटर और स्मॉलर वैल्यूज, आई मीन दिस इज अ लेमैन टर्म, कोई भी बता सकता है दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है और छोटा है. सो जस्ट यूज दिस फॉर्मूला to get to percentage increase. Greater value और smaller value को minus करें और divide कर दें by the smaller value. And similar case for percentage decrease. यहाँ पे आप greater और smaller को minus करके सिर्फ फर्क ही आएगा, divide करेंगे by the greater value. एक example देखते हैं इसकी. The price of a book increased from $20 to $30 in the last month. ठीक है? The price of a book increased from $20 to $30 in the last month. Find the percentage increase. So कौन सा फॉर्मूला यूज होगा दोनों में से? फॉर्मूला 1. ठीक है. So type 2 का फॉर्मूला 1, percentage increase वाला. Now what I want you to do is make an equation with me right now. ठीक है. So solve बेशक ना करें, लेकिन इक्वेशन बनाएं. बताएं क्या सिंपल सी एक इक्वेशन बनेगी, सोचें. g माइनस एस करना है ऑफ कोर्स. सो ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू हो गया 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वैल्यू विच इज 20. सिंपल. यहां से आप इसको सॉल्व कर लेंगे टू गेट टू द आंसर. ठीक है. आई होप नो प्रॉब्लम इन दिस वन. The only catch is that know when to use this type of question. You use this type of question, you use this technique only when the final answer is required as a percentage and not otherwise. अब otherwise क्या situation हो सकती है? That I'm covering in type 3. When answer is required as a value or when the final answer is required as a value. ठीक है. So पहले केस के अंदर फाइनल आंसर जो एमसीक्यूज आपके पास थे वो आपको रिक्वायर्ड थे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. अब जो आपको रिक्वायर्ड है वो एक वैल्यू की सूरत में रिक्वायर्ड है परसेंटेज का ही सवाल, बट यू रिक्वायर इट एज अ वैल्यू. अब इसके अंदर भी फर्दर दो केसेस हो सकते हैं. इट कैन ईदर बी अ परसेंटेज इंक्रीज और इट कैन बी परसेंटेज डिक्रीज. अगर तो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो द फॉर्मूला दैट यू विल यूज इज NV represents, मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख भी देता हूं, NV is representing new value and ये मेरी जो कन्वेंशन स्लाइड के ऊपर है. So NV represents the new value and OV is representing the old value. ठीक है. So जो हमारा पहला केस है, जब मैं कहता हूं कि परसेंटेज इंक्रीज हुई है, फाइनल आंसर इज रिक्वायर्ड एज अ परसेंटेज. एक एग्जांपल मैं आपको साथ साथ करा देता हूं बल्कि. सो फॉर्मूला लिख देता हूं. पहले फॉर्मूला स्लाइड पे लिखा हुआ था. इफ इट्स अ केस ऑफ परसेंटेज इंक्रीज, इट्स सिंपली न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू प्लस परसेंटेज इंक्रीज इनटू ओल्ड वैल्यू. ठीक है. सो मैं आपको ये कहता हूं कि ये मार्कर $12 का मिलता है. ठीक है. एंड जो इसका सप्लायर है, he decided to increase the price by 12%. $12 का मिलता है और 12% ही प्राइस बढ़ाई. What will be the new price? So what I am required to find is the new value. ये मैंने निकालनी है. Old value क्या थी? इसकी $12 थी और परसेंटेज इंक्रीज भी 12% है मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड वैल्यू. सो 12 over 100 into 12. ठीक है. सो यहां से आपके पास फाइनल आंसर आया इन टर्म्स ऑफ अ वैल्यू. जो एमसीक्यू या ग्रिड इन या किसी भी किस्म का सवाल है उसके अंदर फाइनल आंसर परसेंटेज की टर्म्स में नहीं है, बट इट्स इन टर्म्स ऑफ अ वैल्यू. इसका एक एग्जांपल मेरे पास स्लाइड पे भी अवेलेबल है. लेट्स हैव अ लुक एट दैट आल्सो. ड्यूरिंग अ सेल एट अ स्टोर,
everything is marked down 20% less than the selling price. During a sale at the store, everything is marked down 20% less than the selling price. If the price of a watch is $2,400, what will be its price after discount? So very simple. सबसे पहले आप क्या किया करेंगे, हमेशा गिवन इंफॉर्मेशन को लिख लिया करें ताकि आपको पता चल जाए कौन सा फॉर्मूला लगाना है. सो मुझे इमीडिएटली इफ आई रीड दिस क्वेश्चन, मैं लास्ट स्टेटमेंट देखूंगा, मुझे पता चल जाता है कि आई नीड अ वैल्यू. ठीक है, सो इट विल बी टाइप 3. अब कौन सा केस होगा टाइप 3 में से? इज इट अ परसेंटेज इंक्रीज वाला केस और इज इट अ परसेंटेज डिक्रीज वाला केस? सो दिस इज अ केस इन विच परसेंटेज इज decreased. Why? Because it's discount. Something is marked less than the original selling price. So उन्होंने हमसे न्यू वैल्यू पूछी हुई है. ये तो क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ के ही पता चल जाता है लास्ट लाइन से. न्यू वैल्यू इज व्हाट आई नीड. ओल्ड वैल्यू इज 2400 और परसेंटेज कितनी डिक्रीज हो रही है? इट्स गिवन इन द क्वेश्चन. इट इज डिक्रीजिंग बाय 20%. So I will simply plug in these values in the formula that I just showed to you. So new value is equal to old value, which is 2400, minus percentage decrease 20% here. I was just confirming it, and you multiply it with the original value again. Okay, I know there is a shortcut way to do it. For those जिनको काफी curiosity हो रही होगी, I'll tell you, I know that there is a way you multiply it with 0.8 directly. For those जिनको नहीं समझ आ रहा, don't worry about it because I want you to understand this. I want you to learn this. ठीक है? Because what I intend to do is to polish your basics और हम basics पे ही stick करेंगे. So अगर कोई चीज किसी percentage से decrease हो रही है, हम उसकी original price में से उसकी वो percentage decrease apply करा के minus कर देंगे. इसी तरह increase हो रही है तो हम वही percentage increase apply करा के add कर देंगे. So sticking to the basic formulas will help you not get confused during the test. ठीक है, अगर आप ये shortcuts, yes, shortcuts are very very useful, but at times जब बहुत ज़्यादा shortcuts भी सीख लेंगे तो you will get confused during the test कि कब मैंने 0.8 से multiply करना है, कब 1.2 से करना है. I don't want you to go through that if you don't know it already. If you know it, well and good, you can stick to that. If you're learning from scratch, just remember these formulas. They will take you everywhere you want to go in standardized testing. ठीक है, as far as percentages is concerned. एक और एग्जांपल देखते हैं, अगली टाइप देखते हैं बल्कि टाइप 4. Okay, so before actually, sorry, type 4, there is a question that I took out from GMAT and I want us to practice it together. ठीक है, so सवाल को पढ़ें, take 10 seconds. I don't want to interrupt. Read it properly and see if you're able to understand. And while you're reading the question, also think कि अभी तक जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं उनमें से कौन सी टाइप इसके ऊपर somehow apply हो सकती है. Okay, I would say इसके ऊपर टाइप 3 अप्लाई हो सकती है, the one that we just learned. कैसे? ठीक है, हमें ये बताया गया है that there is a certain number, let's call it x. Let's have a look at the board. There is a certain number, let's call it x. अब उन्होंने ये कहा है, दो केसेस दिए हैं. पहला केस उन्होंने ये दिया है कि अगर मैं इसकी वैल्यू 12.5% इंक्रीज कर दूं, लेट्स नॉट रीड एनी फर्दर, लेट्स जस्ट इंक्रीज इट्स वैल्यू बाय 12.5%. वो क्या किस तरह होगी? x, किसी चीज की वैल्यू इंक्रीज करनी है, x प्लस परसेंटेज इंक्रीज ओल्ड वैल्यू प्लस परसेंटेज इंक्रीज इनटू ओल्ड वैल्यू प्लस 12.5 ओवर 100 इनटू x. ठीक है, नाउ लेट्स स्टॉप हियर. उसने कहा कि अगर आप किसी एक सर्टेन नंबर को which I assume to be x 12.5% इंक्रीज कर दें. I stopped here, I went back to the question और साथ ही उसने कहा उसी को आप 25% अगर डिक्रीज भी कर दें. सो अगर मैं ओरिजिनल नंबर को 25% डिक्रीज भी करना चाहता, सो अगेन अब दूसरा फॉर्मूला यूज होगा x माइनस 25 ओवर 100 इंटू एक्स. ये 0.75x आ जाता, ऊपर 1.125x आ जाएगा.
ठीक है, 2 नंबर्स मेरे पास आ गए। अब उसने मुझे कहा क्या है, स्लाइड पे अगर हम आके देखें, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 12.5% and the value of the number decreased by 30% is 30. So इन दो नंबर्स का जो मैंने निकाले हैं 1.125 and 0.75, इनका डिफरेंस 30 है। So what I'll do is मैं सिंपल एक इक्वेशन बना दूंगा, बल्कि आप स्लाइड पे देख लें क्या इक्वेशन बनेगी। 1.125x माइनस 0.75x इज इक्वल टू, डिफरेंस मुझे क्वेश्चन में गिवन था 30। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आई गेट टू द आंसर 80। ठीक है, so that's how you solve complex problems using basic techniques that we're learning here today. वही फॉर्मूला यूज हुआ यहाँ पे, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू प्लस परसेंटेज इंक्रीज इनटू ओल्ड वैल्यू। यहाँ पे यूज हुआ न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस परसेंटेज डिक्रीज इनटू ओल्ड वैल्यू। सो मेरे पास इन टर्म्स ऑफ एक्स दो नंबर्स आ गए, इन दो नंबर्स का डिफरेंस 30 बताया गया था। सो मैंने सिंपल इसको और इसको माइनस किया and I set it equal to 30, and that's how I got to the answer. ठीक है, चलें, let's move on. I hope अभी तक it's clear. Okay, this is one question that I always want to teach to participants who are attending GRE GMAT workshop, because I think it is quite relatable in a lot of ways, and I'll explain why in a bit. First, I want you to read the question, please. A survey found that 80% of the households have smoke alarms installed. A survey found that 80% of the households have smoke alarms installed. Of these, 20% of the alarms are not working. Find the percentage of working smoke alarms. ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं। हमें ये बताया गया कि एक सर्टेन सोसाइटी है, एक सर्टेन एरिया है जहां पे 80% हाउस होल्ड्स के अंदर स्मोक अलार्म इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब उन 80% घरों में से जिनमें स्मोक अलार्म इंस्टॉल्ड है, 20% आर नॉट वर्किंग, एंड वी नीड टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स व्हिच हैव अ वर्किंग स्मोक अलार्म। ठीक है, सो इन दिस केस आपको टाइटल से आइडिया हो गया होगा, मैंने लिखा हुआ है assuming total quantity to be 100. So percentages के questions के अंदर wherever you feel you can replace, or wherever you feel that you need, you can possibly assume the total quantity to be a certain value, and it will help you navigate through the question in a much faster way. Do that. So बजाय इसके, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, बजाय इसके कि आप टोटल क्वांटिटी x एज्यूम करें, टोटल नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स x एज्यूम करें, और फिर आप कहें अच्छा उन x में से 0.8x के पास अलार्म है, 0.2x के पास अलार्म नहीं है, ट्राई एंड गेट रिड ऑफ अलजेब्रा इन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग एज मच एज यू कैन। जहां पे आप अवॉइड कर सकते हैं x, y, a, b, c इस तरह के वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कराना, ट्राई एंड अवॉइड दैट। एज्यूम कर लें परसेंटेजेस के टर्म्स में, इट्स ऑलवेज, जब भी एज्यूम करना हो, ऑलवेज एज्यूम द टोटल क्वांटिटी टू बी 100। व्हाई? बिकॉज परसेंटेज 100 में से ही निकलती है। तो अगर आप किसी भी चीज की टोटल क्वांटिटी को 100 एज्यूम करके वर्कआउट करेंगे प्रॉब्लम को, the answer that you will get will already be in percentage. Why? Because percentages are also calculated out of 100. So if the total quantity assumed is 100, तो आपका जो assumed answer आया है that is also in percentage terms. ठीक है, so I will follow this technique. Let's say मैं कहता हूं total number of households मेरे पास 100 है। ठीक है, I don't know actual households कितने हैं, मैंने 100 assume कर लिया। उसमें से 80% के पास अलार्म मौजूद है। तो how many have an alarm? 80. I will write 80 here. जिनके पास नहीं है 20. ठीक है, and it's also easier to work with 100 because something percent of 100 is easier to find. ठीक है, अब आगे क्या था, उन्होंने कहा now let's talk about this 180 वाली quantity. Of these 20% are not working. So 20% of 80 होता है 20 over 100. Simple, going back to a translation, 20 over 100 into 80, ये बन गया 16. So 16 का अलार्म क्लॉक, या अलार्म क्लॉक कह रहा हूँ, स्मोक अलार्म और बर्गलर अलार्म व्हाटएवर इज नॉट वर्किंग। सही है, सो आई विल राइट नॉट वर्किंग हियर। बाकी कितने रह गए 80 में से?
80 में से 16 का नहीं चल रहा, तो दैट मीन्स जो 64 रहते हैं उनका अलार्म इज वर्किंग। सो मुझे टोटल हाउस होल्ड्स थे ये, उसमें से ये वो हैं जिनके पास अलार्म है। 80 आर द ones that have an alarm, 20 are the ones that don't have an alarm, so let's call it A dash. Out of those who have an alarm, so out of 80, ये जो ट्री बन रहा है इसके नीचे मैं और एक्सटेंड करूंगा, 20% के नहीं चलते, so what I did was I said 20 over 100 into 80. 20% don't have working smoke alarms, so 20 over 100 into 80 is 16. I know 16 households have alarms that are not working. टोटल हाउसहोल्ड अभी तक एज्यूम्ड मेरे कितने आ गए थे 80, उसमें से 16 का नहीं चल रहा है, तो कितनों का चल रहा है 80 minus 16, 64, ट्री की डिफरेंट ब्रांच है। सो ये जो मेरे पास आंसर आया है, दिस इज ऑलरेडी इन द फॉर्म दैट इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, बिकॉज उन्होंने परसेंटेज में पूछा हुआ था और ये मेरे पास 100 में से कैलकुलेटेड है, तो इट इज ऑलरेडी अ परसेंटेज। एंड इसके ये तो अभी काफी बेसिक क्वेश्चन है। The more difficult ones in which you can assume and get to the answer in a very short amount of time, I have included them in the practice session, which we have, I believe, for tomorrow. उसके अंदर मैंने थोड़े मुश्किल सवाल इकट्ठे किए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आज आप वापस जाके इन कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट करें, इन एग्जाम्पल्स को दोबारा से सॉल्व करें, एंड टुमारो यू कम बैक विद these formulas, these techniques learnt very well, with a fresh mind, and we solve lots of questions together from the topics that we will cover today and tomorrow morning, afternoon. ठीक है? So anyway, अगर हम स्लाइड्स पे वापस आए, ये इस तरह से हुआ है, आपके सामने एक इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी आ गई। ठीक हो गया, चलें, लेट्स मूव ऑन टू टाइप 5, विच इज आवर लास्ट टाइप, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज में जाने से पहले आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन अ लेमैन्स टर्म। ठीक है, बिल्कुल इसको एक सिंपल तरीके से मैं कोशिश करता हूं आपको समझाऊं। दो लोग हैं, ठीक है, सो इसको मैं समझाने की अभी ये कोशिश करने लगा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है। सो लेट्स अज्यूम देयर आर टू पीपल। पर्सन वन इज मी, आई हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, आई हैव 100 रुपीज, ठीक है। आई टेक दोस 100 रुपीज टू अ बैंक और मैं कहता हूं कि आई वॉन्ट टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन योर बैंक, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट दिस 100 रुपी नोट, टेल मी द ऑप्शंस दैट यू हैव। बैंक मुझे आगे से ये जवाब देता है, श्योर यू कैन इन्वेस्ट 100 रुपीज विद अस, वी गिव अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 7%, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 7%, ये बज़वर्ड्स अब नोट करते जाएं। We give you a rate of return of 7%. We offer simple interest and you will have to invest with us for at least 2 years. So, situation क्या है? मेरे पास 100 रुपए हैं, बैंक is giving me 7% interest. It's a simple interest. I have to invest for 2 years. So, let me just note down the quantities जो मैंने अभी जो parameters मैंने बताए। जो मेरे पास 100 रुपीज है, दैट इज माई प्रिंसिपल, ठीक है, द इनिशियल अमाउंट दैट आई हैव एट द बिगिनिंग ऑफ माई इन्वेस्टमेंट टर्म। ओके, लेट मी फाइंड अ न्यू पेन। ओके, ये ठीक है। सो ये जो मेरे पास है पी, दैट इज 100, प्रिंसिपल कहते हैं उसको, द इनिशियल अमाउंट दैट आई एम टेकिंग टू इन्वेस्ट। ठीक हो गया। अब रेट ऑफ रिटर्न मुझे क्या मिल रहा था, आर इज, उन्होंने मुझे कहा वी विल गिव यू अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 7%। सो 7% आई कैन राइट इट एज 7% और आई कैन राइट इट एज 0.07 और 7/100 व्हाटएवर, ठीक है। सो प्रिंसिपल कहते हैं जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं, आर कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को, और ये सिंपल इंटरेस्ट है, अभी मैं इसका फर्क बताता हूं। और टी क्या था, द अमाउंट दैट आई एम इन्वेस्टिंग फॉर, ये ईयर्स में होता है और वो 2 years था, और इसके ऊपर मुझे एक सर्टेन इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड आई। मैंने कहा चले ठीक है, अब होगा क्या, 2 साल के लिए मैंने इन्वेस्ट किया, मेरे 100 रुपए उधर के उधर ही रहे, उसके ऊपर आई विल अर्न अ सर्टेन इंटरेस्ट, and after 2 years I can take back my 100 rupees and I can take back the amount of interest that the bank paid me, और मैं वापस आ गया। अब एक और बंदा इस साइड पे दूसरे बैंक जाता है, वो बैंक उससे ये कहता है कि we will give you
अनदर ऑफर, वो ऑफर ये है कि हम आपके इंटरेस्ट को कंपाउंड करेंगे। इंटरेस्ट कंपाउंड करने का क्या मतलब है? इंटरेस्ट कंपाउंड करने का ये मतलब है, मेरे केस में क्या हो रहा था कि साल में एक दफा 7% कैलकुलेट करके ऐड हो रहा था। अब लेट्स से कि ये नया बैंक कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 टाइम्स इन अ ईयर। ठीक है, हम आपके इंटरेस्ट को बाय एनुअली कंपाउंड करेंगे। उसका मतलब ये है कि मेरी इनिशियल अमाउंट थी 100, जितना मेरा इंटरेस्ट बन चुका होगा आफ्टर 6 मंथ्स, वो इंटरेस्ट मेरे प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। सो लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूं कि 6 महीने बाद मेरा इंटरेस्ट बन गया 12 रुपीज, मेरा प्रिंसिपल था 100। अब मेरा नया प्रिंसिपल, सो वो क्या करते हैं, वो प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं। माई न्यू प्रिंसिपल विल बिकम 100 + 12, 112। एंड द नेक्स्ट टाइम आफ्टर 6 मंथ्स जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो 112 पे कैलकुलेट किया जाएगा। सो माई प्रिंसिपल इज बेसिकली चेंजिंग। ठीक है, सो उस केस में हमेशा मैं 10 साल के लिए भी करूंगा, वो मेरा प्रिंसिपल 100 ही काउंट करेंगे, उसी के ऊपर मुझे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता रहेगा। कंपाउंड में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट अर्न हो चुका होता है वो पुरानी अमाउंट में ऐड हो चुका होता है, और फिर अगली दफा जब मिलना होता है तो न्यू परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है फ्रॉम दिस इंक्रीज्ड और कंपाउंडेड वैल्यू। ये थी इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन। अब अगर हम बात करें कि इसके फॉर्मूलाज क्या हैं, स्लाइड पे आते हैं। आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं जिसमें वो आपको ईदर ऑफ द टू केसेस दे देगा और आपसे कहेगा फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई अर्नड आफ्टर दिस मेनी इयर्स, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल और एक्सक्लूडिंग द प्रिंसिपल। सो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर इफ यू कम बैक टू द स्लाइड्स, एक फॉर्मूला है काफी फेमस, आई इज इक्वल टू पी आर टी। ठीक है, आई इज इक्वल टू पी आर टी क्या है, आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट आई विल गेट, पी इज द प्रिंसिपल, R is the rate of interest and T is the time in years। ये फॉर्मूला आप नोट कर लें। ठीक है, सो ये सिर्फ इंटरेस्ट की अमाउंट है। अगर वो टोटल अमाउंट पूछता है तो मैं अपने प्रिंसिपल में ऐड कर दूंगा एंड देन इट विल बिकम P प्लस आई आर, P प्लस आई और P प्लस पी आर टी। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, द वन दैट यू सी एट द सेकंड, द बॉटम टेबल। इसके अंदर फॉर्मूला ये कह रहा है द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट यू विल हैव after a certain number of years, which is represented by A, would be given by this formula। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, P multiplied by ब्रैकेट्स में 1 plus R over N whole power NT। अब P तो प्रिंसिपल हो गया। कमिंग बैक टू आवर बैंक एग्जांपल, लेट्स से P was 100, तो A is equal to P, P 100 आ गया, 1 तो ऑफ कोर्स इज अ नंबर इन द फॉर्मूला। R क्या है, R is the rate of interest। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप डेसिमल में ले लें या फ्रैक्शन में ले लें, आपकी मर्जी है, डिवाइडेड बाय एन। सो ये एन क्या है, एन इज बेसिकली द नंबर ऑफ टाइम्स योर इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड इन अ ईयर। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होती है। ठीक है, सो जैसे मैंने बाय एनुअली कहा था तो एन की वैल्यू हो गई 2, साल में 2 दफा इंटरेस्ट कंपाउंड किया जाता है। ठीक है, एन की वैल्यू हो गई 2, होल पावर एन टी, टी इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू विल spend it for in the number of years। Don't worry about the complexity of the equation, because in most cases the answer choices that you will have will also contain the entire equation। So सिर्फ इसी तरह की equation लिखी होगी, values replace हुई होंगी, p की जगह 100 लिखा होगा, r की जगह 0.07, n की जगह 2, किसी जगह 3। So you have to just pick which is the right equation। इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। उप्स, आंसर नहीं दिखाना अभी। Bilal decides to invest. Okay, so this is our last example for the topic of percentages, and we will still have about 5 minutes after the class, after this question. So what we'll do is I'll take your questions. My team is already sending me the questions that you've asked on the chat, and I will try to answer as many as possible in the given amount of time। अभी इस सवाल को देखते हैं। बिलाल डिसाइड्स टू इन्वेस्ट 3500 इन अ सेविंग्स अकाउंट एंड दैट पेज सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, सो प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल सिंपली इज 35, बोर्ड पे आके देखते हैं, प्रिंसिपल इज 3500। ठीक है, डिसाइड्स टू इन्वेस्ट इन अ सेविंग्स अकाउंट, अच्छा मुझे ये भी पता है इट्स सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल 3500 है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है जी मुझे 10%. सो कैन आई से rate of interest R की value is 0.10, 10%, 10 over 100 is 0.10. And how much money will I have after 18 months? ठीक है. So time की क्या value है? 18 months में given है. You have to convert it to years. So 18 months divided by 12 number of months in a year. तो 18 divided by 12 is 1.5. You now also have the time. ठीक है. अब आपने अमाउंट निकालनी है. एक तो आपके पास प्रिंसिपल होगा जो आपके अपने पैसे थे 3500 प्लस जो आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाया है which is given by PRT and PRT is nothing but 3500 into 0.1 into 1.5. यहाँ से आप इंटरेस्ट निकालें, इसको 3500 में ऐड करें and this will be the total amount that you will have at the end of 18 months. ठीक है. स्लाइड पे भी इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ so you can see more clearly the steps involved. ठीक हो गया. ये स्टेप्स आप एक दफा देख लें, अपना फाइनल आंसर टैली कर दें. ओके. And meanwhile, I'm reading the questions that you guys have asked. Okay, there are a lot of questions. This one is a good one. ठीक है. चलें. Let's come back and see a couple of questions that you've asked. Questions थोड़े general in nature हैं, which for me is a good news because that reassures me that the topic that we were covering आप लोगों को fully समझ आ चुका है and you didn't get lost in any of the steps involved. So the first question that I received is related to NTS GAT. So actually I wanted to mention it myself at the end of the class. NTS का जो एक टेस्ट है GAT general, that is also acceptable test for admission into universities, LUMS being one of them. GAT के अंदर क्या सिलेबस है, किस तरह के टॉपिक्स आते हैं, उससे रिलेटेड सवाल था. So to answer that, what I would say is that we have a very exciting session arranged for NTS GAT separately. ठीक है. हम NTS GAT का ना सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देंगे, उसके मैथ की कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, उसकी वर्बल के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड एनटीएस गैट के अंदर देयर इज अनदर पोर्शन जो कि लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बेस्ड होता है, सो वो भी करेंगे. लेकिन अभी व्हाट आई कैन टेल यू इज गैट की जो मैथ होती है दैट इज नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट, ऑल्दो उसके अंदर टॉपिक्स बहुत ज्यादा है. सही है. सो दो किस्म के आपके पास चॉइस होती है. जीआरई जीमैट के अंदर नंबर ऑफ टॉपिक्स इतना ज्यादा नहीं है, बट उन टॉपिक्स को समझना या इस तरह के शॉर्टकट्स देखना कैन टेक यू अ फ्यू वीक्स. ठीक है, मे बी 2-3 वीक्स. गैट के अंदर सिलेबस बहुत ज्यादा है लेकिन लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम है. सो जिसे कहते हैं ना, उसमें विड्थ ज्यादा है, डेप्थ कम है. जीआरई जीमैट में विड्थ कम है, डेप्थ ज्यादा है. उसके अंदर आपको पैराबोलास और वो सारी चीजें भी पता होनी चाहिए. जीआरई जीमैट डजंट गेट दैट कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है. So that was the first question from somebody. So मैंने आपको थोड़ा सारा difference तो बता दिया, and I also told you that we will have a detailed session on NTS GAT. And if you're considering of taking the GAT, you should understand कि GAT के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, किस तरह से उसको treat किया जा सकता है. So tune into that session as well. Meanwhile, I'll read the second question. Okay, actually the second and third question is very related, and they are saying. Can you, okay, so they want to view the slides related to compound interest and understand the meaning of N. Okay, can we go back to the slides please? Okay, so यहाँ पे किसी ने मेरे से compound interest को दोबारा समझाने को कहा है. I'll do that in the last 2-3 minutes that we have. अच्छा, okay, ठीक है. So वो ये कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट समझ आ गया है बट दे वांट टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला वंस अगेन. ठीक है, फेयर इनफ. द फॉर्मूला इज, पहले सिंपल रीड आउट कर देता हूं फॉर्मूला. A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R ओवर N होल पावर NT. अब A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, द टोटल सेविंग्स दैट यू विल हैव आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. टाइम की वैल्यू भी गिवन होगी, 2 साल हो सकता है, साल हो सकता है, व्हाटएवर. P is the principal. Principal क्या है? The initial amount that you are investing or putting in a bank or investing with somebody
to get an interest out of it. So P वो principal है, initially आपके पास कितने पैसे थे. 1 is a part of the formula, जिस तरह से formula derive हुआ है, so it's a constant term, don't worry about that. 1 plus R over N. R is the rate of interest. R is given as a percentage. जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि बैंक्स का इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, बैंक्स का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया है, इंटरेस्ट रेट 7% पे है, 12% पे चला गया है. सो दैट परसेंटेज क्लियरली लिखा होता है क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर, विच गिव्स अ रिटर्न ऑफ, which pays an interest at a percentage of, इस तरह करके. So उसको आपने डेसिमल में ले लो तो it's easier. If it's 10% it becomes 0.1, if it's 12% it becomes 0.12, इस तरह करके. And n को लेके भी कुछ लोगों को I think confusion हुई होगी. n is the number of times interest is compounded in a particular year. ठीक है. So अगर एक बैंक मुझे कहता है कि मैं आपका इंटरेस्ट साल में 2 दफा कंपाउंड करूंगा तो n की वैल्यू इज 2. कंपाउंड करने का मैंने मतलब बता दिया था कि आपका एक दफा इंटरेस्ट पे करेगा, प्रिंसिपल में ऐड करेगा और अगली दफा उस पे काउंट करेगा इंटरेस्ट. देन देयर आर क्वेश्चंस जिसके अंदर कहा जाता है द इंटरेस्ट वुड बी कंपाउंडेड क्वार्टरली. क्वार्टरली के अंदर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू 4 हो जाएगी, बिकॉज एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं. सो दैट इज व्हाट n इज. ठीक है. आई होप इट्स क्लियर नाउ. एक दफा फिर से आप इसको नोट कर लें जिन्होंने नहीं किया. Okay, ठीक है जी. So this brings us to the end of the session. Thank you very much. I hope you enjoyed it. I hope you learned something from it. The sessions that we have tomorrow will get slightly more tough, but we'll stay relevant. We'll try to keep it simple, and we will help you breeze through the standardized testing for graduate programs. All the best, and see you tomorrow. Allah Hafiz.